Hi friends, this is Rohit Khanna again with a new video on motivation. And today I would like to speak on your mental growth, mental toughness. So, folks, friends, if we are mentally fit, it means you are physically fit also. How you can say this thing, sir? Mental fitness and physical fitness are two different things. No. Friends, mental fitness and mental toughness gives you lot of many things which makes you more fitter than others. How physically fit and mentally fit are the same things? If you are physically unfit, it means something is wrong with your so-called images or so-called mind. So today's topic is mental toughness. If I share the screen and say, look, mental fitness and toughness will give you a better opportunity in life from others. If you are mentally tough, you can take the emotions, you can accept the ethics, you can change yourself, you are mentally very strong, your eyes are open, you are listening to others, you are a good listener, and you are very tough and can take decisions as per your point. So if I talk of mental toughness, the first part is the control part. There are two controls into mental toughness. One is emotional control. With emotional control, I also add one thing that is called life control. So friends, if I speak about control, controlling your mind, everybody is speaking on mindset. Everybody is saying you should think positive. Everybody, you talk to any Baba, you talk to any motivation trainer, you talk to any counselor, they talk about mind. It is proven fact that there are 60,000 thoughts which are coming on a daily basis. But you are unaware whether that thought is making me mentally more tough or you are losing your emotions. Like when somebody scolds you, your boss scolds you or your teacher scolds you, आपके जब टीचर आपको डांटते हैं तो आपको हर्ट कर जाता है। और खासकर ये देखा गया जो मेंटली टफ नहीं होते उनका रोना आता है और फिर उनके डिसीजंस एकदम चेंज हो जाते हैं। तो इमोशनली फिट भी होना, मेंटल टफनेस के लिए आपको पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब ये इमोशंस क्या चीज है, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। इमोशंस होते हैं हमारे आउटकम्स, हमारे रिएक्शंस। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, आपके बारे में बोला, समाज के बारे में बोला, कंट्री के बारे में बोला, इमीडिएटली आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, इट मीन्स आपको पेट्रियोटिज्म आ जाता है। और जब मैं कहता हूँ फ्रेंड्स की आपको, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करा तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते। बॉस ने डांटा, आगे बैठ गए अपनी चेयर पे, कंप्यूटर पे, सारे दिन यही सोचते रह गए मेरे को डांट तो पड़ी। बॉस ने डांटा, बॉस आपका बॉस है, इट इज ऑलवेज हिज बॉस। सो उसने डांटा तो उसको कोई आपके सिर्फ पर्सनल ग्रज थोड़ी है जो आपको डांटा, आपने कुछ ना कुछ तो गलत करा होगा। तो उसको आप अगर इमोशंस में लेके बैठ जाओगे और अपना मूड स्विंग करोगे तो आप अपना माइंड कंट्रोल, अगर माइंड भी कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटल टफनेस नहीं है तो आप अपनी लाइफ, आप ऑफिस से डांट खा के आओगे और घर में आके अपने बच्चों को और अपनी बीवी को डांटना।
लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कंट्रोल द माइंड? दैट यू हैव टू डू lot of positive thoughts, lot of motivation, good books you have to read. You have to work out. You do have to do yoga, pranayam, and one thing which everybody says, meditation. But I say meditation is a very tough job. जो images होती हैं हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल से जाती हैं। टफ images तो बहुत ही मुश्किल से जाती हैं। तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, थॉटलेस होना है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए क्या करना होता है? एक सिंपल सी बात है प्रेजेंट में रहने के लिए। एक चीज समझ लीजिए, किसी ने कहा है कि येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री। ना आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे। जो भी है आज है, अब है, अभी है। तो अभी को अगर आप टफ बना लोगे तो फ्यूचर तो टफ बनेगा। अगर एटीट्यूड आपका डिफरेंट नहीं है तो आप विनर नहीं हो सकते। एज पर शिव खेरा ने कहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विनर होता है वही सिकंदर होता है, जो जीता वही सिकंदर। तो विनर क्यों होता है? क्योंकि वो एक काम को बहुत टफनेस से करता है और दूसरे से अलग तरीके से करता है। वो ना कि इमोशनली इफेक्टेड होता है, ना ही वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, ना ही वो पेसिमिज्म की बातें करता है, ना ही ऑप्टिमिज्म की बातें करता है। वो एक कंट्रोल की बातें करता है, जो हम कहते हैं रियलिस्टिक एटीट्यूड। नाउ अगर हमारा माइंड टफ है, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो हम अपने माइंड से अपने आप में अपने फंक्शंस को डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हम अपने फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का पता है हमें, तो हम एक प्लानिंग कर सकते हैं टूवर्ड्स ऑब्टेनिंग अ गोल्स। जैसे जैसे आप मेंटल टफ होते हो और आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते जाते हैं, आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, आप अपने माइंड को, अपनी चाबी, माइंड की चाबी अपने हाथ में रखते हो, दूसरे के हाथ में नहीं देनी है। अगर अपनी माइंड की चाबी अपने हाथ में रखते हो तो आप देखोगे आपका काम पॉजिटिव होने लगता है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सकारात्मक हो जाता है। तो ये कहना बहुत आसान है कि अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव रखो, बट पॉजिटिव कैसे रखें? तो उसके लिए जितनी मेहनत आपने नेगेटिव बनाने में लगाई थी, उससे डबल मेहनत आपको पॉजिटिव बनने में लगना पड़ेगा। किसी के कहने से अगर आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है तो आपने चाबी तो उसका हाथ में दे रखी है, अपने हाथ में थोड़ी दे रखी है। तो सक्सेस पाने के लिए पहले अपने पे माइंड को कंट्रोल करो और अपने गोल की तरफ बढ़ो। जब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने लगते हैं तो गोल और पास आ जाता है। जो बाइडन ने कहा था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बना है जो बाइडन, उसने कहा था कि आई हैव लर्न टू फाइट बिकॉज आई लव टू प्ले फुटबॉल एंड आई नो टू ड्रिबल द बॉल एंड नो वेयर इज माई गोल, सो आई ड्रिबल द बॉल एंड शूट एट द गोल पोस्ट। अब वो लगे ना लगे दैट इज डिफरेंट, गोल हो ना हो दैट इज डिफरेंट, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। आपको अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आपको नॉर्मल रहना। तो मेंटली अगर आप टफ हो तो खुशी में भी आप नॉर्मल होगे और गम में भी आप नॉर्मल होगे। इसकी प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो इसके लिए पहले आप 4 चीज़ें समझ लें कि अगर आपको टफ होना है और मेंटली टफ होना है, फिजिकली टफ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा जाके घूसा मार दो, मैं ये कह रहा हूं कि मेंटल टफनेस आनी चाहिए। और मेंटल टफनेस नहीं आई अगर,
तो कोई फायदा नहीं, जिंदगी खराब हो जाएगी। और जिंदगी अगर आपने किसी और के हाथ में दे दी तो वो आपके साथ आपसे कोई भी काम करवा लेगा। तो अगर सक्सेस चाहिए तो टफनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्लियर होने चाहिए। सक्सेस चाहिए तो सिर्फ प्लान ए होता है, बी सी डी नहीं होता है। और अगर मेंटल टफनेस चाहिए तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं स्ट्रेचिंग से, एक्सरसाइज से, जिम से, योगा से और थोड़ा सा प्राणायाम से। ये आज की वीडियो का लास्ट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि हाउ टू बिकम more and more positive on a daily basis. Thank you friends. Soon I would be coming again. Please subscribe my channel Unforgettable Motivation and press the bell icon. Every day one or two new videos will be there on motivation, happiness, life challenges, mental toughness, on stress busters, on anything which is related to your mental health. Thank you. Thank you very much.